So now come here. So this was the website where we were. Okay, this website has published a report on the GDP of the different countries. Okay, the Yes, gross sir. domestic product that different countries generated in 2020. Here the top 15 countries have been given, and as we can see that in number 1 United States is there. Okay, what is the total GDP of United States? Nominal GDP that is calculated at base year price is 20.81 trillion, and GDP per capita, So GDP not per capita, seeing anything here. you are not seeing. Yes, sir. No, sir. Wait. So that And your what sound is is also displayed? very low. Sound आ गया sir. Now can you see? No, sir. That yeah. Now. Sir. Now you can see. Okay. No. Now United Yes, States sir. United States is at rank 1 with a GDP, nominal GDP, which is calculated at base year price, is $20.81 trillion. Okay, and GDP per capita we had discussed just now, no, that per capita income is calculated on national income. That is what NNP, when divided by the total population of the country, we get per capita. But we also calculate GDP per capita. GDP per capita means the total GDP of our country in an year, that is to be divided by the total population of the country. So the GDP per capita income of US is $63,051 trillion. Okay, now GDP purchasing power parity. Okay, it is GDP purchasing power parity. It is called PPP. You will study this concept, purchasing power parity, in graduation. Okay, it is 20.81 trillion. Likewise, we have another country, China, with 14.86 trillion as total GDP. Okay, in third we have Japan. Its total nominal GDP in 2020 was 4.91 trillion. Now you see the difference between the GDP. United States with highest 20.81, and Japan, that ranks 3, is here with 4.91 trillion. There is a huge gap. Okay, now on fourth number we have Germany with 3.78 trillion. Then we have United Kingdom, that is England and some of its allies, 2.64 trillion. Then we have India here with 2.59 trillion. Likewise, France 2.55 trillion. Italy 1.85 trillion. Then we have Canada 1.60 trillion. South Korea 1.59 trillion. Russia 1.46 trillion. Then Brazil 1.36 trillion. Then we have this Australia 1.33 trillion. Then Spain 1.25 trillion. Indonesia 1.09 trillion. So this was the list of the countries who had the highest GDP, the top 15 countries. So we discussed that. Okay, now I will share you again this screen. Where were we? Okay, I'm cutting this. So now you can see this screen. Yes, sir. Okay, now nominal GDP and real GDP we are going to discuss. Okay, nominal GDP and real GDP. What is the difference, fundamental difference between nominal GDP and real GDP? When the GDP is calculated at current market price, it is called nominal GDP. जब हम GDP को current market price के साथ calculate करते हैं, यानी इस साल का हमारा क्या बोलते हैं टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसी साल के मार्केट प्राइस के साथ, तो वो हमको मिल जाएगा नॉमिनल जीडीपी. ठीक है, कहता है कि इट कवर्स ऑल द चेंजेस इन मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस में क्या क्या चेंज हुआ ये सब कुछ कवर कर लेता है. ठीक, पर एक मिनट यहाँ गलत लिखा हुआ है, देखो ये
नहीं, ठीक है, कह रहा है करंट मार्केट प्राइस को जब हम करंट मार्केट प्राइस को जब हम टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी उसी साल हमने जितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया उसी को हम उसी साल के मार्केट प्राइस के साथ जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिल जाता है नॉमिनल जीडीपी। कहता है नॉमिनल जीडीपी ये दिखाता है कि मार्केट कैसे चेंज हुआ है पूरे साल, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें हम करंट मार्केट प्राइस को लिए हैं, है ना, इसलिए ये पूरा ट्रेंड दिखाएगा हाउ द मार्केट was changing during that financial year। कहता है if the price level increases without the increase in output the nominal GDP also increases। कह रहा है कि अगर commodities का दाम महंगा हो जाए, यानी जो हमारा जनरल प्राइस लेवल है अगर वो बढ़ा लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ा, उसके साथ आउटपुट अपनी जगह वैसे ही कांस्टेंट है, लेकिन क्या हुआ, चीजों का प्राइस बढ़ गया, तो नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप with the price level। If the price level increases without the increase in output the nominal GDP also increases। Okay, now here it is written, it is calculated by multiplying all the final goods and services by the respective prices of that year। when the prices in the market change real GDP also change। कह रहा है जहां नॉमिनल जीडीपी की बात हम ये किए थे कि इस साल का हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्शन, total value of goods and services produced when multiplied with the current price then we get nominal GDP। ठीक उसी तरीके से जब अगर बात करें हम रियल जीडीपी की, तो रियल जीडीपी में हम टोटल वैल्यू goods and services produced this year has to be multiplied with the price of last year। पिछले साल का प्राइस होगा, इस साल का आउटपुट होगा, इस साल के आउटपुट को पिछले साल के प्राइस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा रियल जीडीपी। तो कोई भी कंट्री नॉमिनल जीडीपी ही शो करता है अपना, ठीक है, रियल जीडीपी उसकी अपने स्टडी के लिए है। नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए आपको प्राइस ऑफ 1 ईयर, है ना, प्राइस ऑफ दिस ईयर हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ आउटपुट ऑफ दिस ईयर। उसी तरीके से आपको P2 Q2 ये सीरीज चलता जाएगा और ये जाएगा PN QN तक। लेकिन रियल जीडीपी तो बेस ईयर प्राइस पे निकाला जाता है लास्ट ईयर का, तो प्राइस ऑफ बेस ईयर P0 हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ क्वांटिटी ऑफ दिस ईयर, दैट इज द आउटपुट ऑफ दिस ईयर। फिर प्राइस ऑफ बेस ईयर हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ द क्वांटिटी ऑफ द सेकेंड क्वांटिटी ऑफ दिस ईयर। इसी तरीके से ये P0 QN तक जाएगा। ये इसका इन दोनों का फॉर्मूला था। अब आइए एक और कॉन्सेप्ट है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के अलावा, वो है जीडीपी डिफ्लेटर। क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर? कहता है इट इज द मेजर ऑफ रिलेटिव चेंजेस इन द करंट लेवल प्राइसेस इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ बेस ईयर। कह रहा है पिछले साल का जो प्राइस था वो इस साल के प्राइस लेवल से कैसे अलग है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर यूज करते हैं। अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहना तो ये रेशियो है। किस चीज का रेशियो है? ठीक है, ये रेशियो है कि आपका जो लास्ट ईयर का जीडीपी है वो इस साल के जीडीपी के साथ कितना फ्लक्चुएटिंग है ना। कहता है देखिए पहले फ्रॉम दिस वी कैन, अगर हमको जीडीपी डिफ्लेटर निकालना हो, जीडीपी डिफ्लेटर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड कर देंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यानी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का आप रेशियो निकाल लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो आपको मिल जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। अब इसी फॉर्मूले से हम दूसरी चीजें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी से हम रियल जीडीपी का इक्वेशन बना सकते हैं, इसी से हम नॉमिनल जीडीपी का भी इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ पे दोनों का लिखा हुआ है। आप लोग का मैथमेटिक्स मेरे से ज्यादा अच्छा है, यू गाइस कैन डू। ओके, कहता है जीडीपी डिफ्लेटर इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। कहता है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्यों चाहिए भाई हमको, क्योंकि जब भी हमको रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई का दर निकालना होता है कि महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है घट रही है, तो हमें जीडीपी डिफ्लेटर की जरूरत होती है। देखिए कैसे जरूरत होती है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालना है तो क्या करेंगे, चेंज इन जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर में कितना चेंज आया लास्ट ईयर और करंट ईयर, उसको डिवाइड करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के जीडीपी डिफ्लेटर से, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
पहले ये कॉन्सेप्ट्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है। अब आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसमें दो इमेजेस हैं जो हम लोग को डिस्कस करने हैं, ठीक। देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। कहता है कि जो किसी भी कंट्री का इकोनॉमी है, द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सेक्टर्स। व्हाट आर दोज सेक्टर्स? दोज सेक्टर्स आर प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स, कंजम्पशन सेक्टर्स, है ना। Agricultural sector is there, tourism is there, and then we have transport and communication, trade and industry, business sector. There are several sectors, international trade. There are several sectors on which the economy of a country depends. ये दिखा रहा है, ये जो फिगर है ये दिखा रहा है that economy has relation with this all different sectors from which it gains income, है ना। कहता है it refers to the flow of resources, goods and services among the different sectors of an economy. In the major exchanges, in this major exchanges are shown by the flow of money, goods and services among the different economic agents. It also shows the dependence of an economy over its sectors. कहता है कि circular flow of income हमको ये बताता है कि हमारा इनकम जो है वो किन किन सोर्सेस पे डिपेंड करता है, यानी किन किन इकोनॉमिक सेक्टर्स पे हमारा जो इनकम है वो डिपेंड करता है, और हमारे कंट्री का जो इनकम है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। वो हमेशा देखिए क्या होगा, वो हमेशा हाउस होल्ड से किसकी तरफ जाएगा, बिजनेस सेक्टर की तरफ जाएगा, और बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को वापस वो रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा। इसको समझने के लिए बस सिंपल आपको एक सिनेरियो सोचना है, ठीक है। ये जो लॉ दिया गया इसके कुछ अजम्पशंस भी दिए गए। कहता है अगर इस एजम्पशन को हम माने तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये मानना है कि इकोनॉमी में दो ही सेक्टर है, एक तो आपका हाउस होल्ड है और एक आपका बिजनेस सेक्टर है। क्यों ऐसा बोले हम? क्योंकि देखिए हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो ओनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। हाउस होल्ड सेक्टर के पास ही लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, ठीक है। अब बिना लेबर, बिना लैंड और बिना कैपिटल के बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो समझ में आया कि हाउस होल्ड और बिजनेस के बीच डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड्स बिजनेस को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देंगे, क्योंकि बिजनेस को अपना काम करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत है। जब हाउस होल्ड, इस फिगर को देखिए, जब हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, क्या देगा, हाउस होल्ड सेक्टर दे रहा है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हाउस होल्ड सेक्टर ट्रांसफर कर रहा है किसकी तरफ, बिजनेस सेक्टर की तरफ। बिजनेस सेक्टर बदले में क्या कर रहा है, बिजनेस सेक्टर को जब ये सर्विस मिल रहा है हाउस होल्ड सेक्टर से, तो वो बिजनेस सेक्टर बदले में इसका पेमेंट कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर। अरे भाई तुम हमको सर्विस दिए और हमसे पैसे भी लो, यानी पेमेंट इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर। ये सब लोग अपना माइक म्यूट करने के लिए बोल रहे हैं। माइक म्यूट करो सब लोग, एवरीवन म्यूट योर माइक। खुशबू अपना माइक म्यूट करो। Yes, sir. माइक म्यूट करो। ठीक है, तो क्या है कि हाउस होल्ड सेक्टर से जो है हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो लैंड, लेबर, कैपिटल दे रहा है बिजनेस सेक्टर को। बिजनेस सेक्टर बोल रहा है भाई हमको जो सर्विस चाहिए थे वो तुम दिए, बदले में हम तुमको पेमेंट करेंगे। तो बिजनेस सेक्टर वापस पेमेंट कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को, किस चीज के लिए, पेमेंट इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। सॉरी, बिजनेस सेक्टर जो है वो वापस इसको इसलिए दे रहा है क्योंकि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ इस डायरेक्शन से, तो यहाँ पे वो उसको पैसा दे रहा है। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी, एक कॉल आ गया। हेलो हेलो, Alok sir has gone, sir. ठीक है, सुनाई दे रहा है ना। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो बिजनेस सेक्टर को देता है फैक्टर ऑफ, सॉरी क्या बोलते हैं आपका, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन,
और बिजनेस सेक्टर भी हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है, फैक्टर पेमेंट्स देता है। कहता है भाई हम तुम्हारी वजह से हम मेरा बिजनेस चल पा रहा है, तो तुम सैलरी ले लो हमसे, रेंट ले लो, ठीक है, तुम प्रॉफिट ले लो, जो लेना है, ठीक है। तो वो इसको इस डायरेक्शन में, देखिए एक ये इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ और यहाँ से इस डायरेक्शन में पैसा फ्लो हुआ। अब देखो बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दे सकता है, बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज देगा, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया वो, अब गुड्स एंड सर्विसेज देगा, ये दिया, ठीक है। और हाउस होल्ड सेक्टर उसको क्या बोला कि गुड्स एंड सर्विस दिए ना, लो पैसा ले लो, ठीक है। तो पेमेंट किया इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये ऊपर वाला आपका फैक्टर मार्केट है, ये नीचे वाला आपका प्रोडक्ट मार्केट है। इसका टोटल रिलेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये आपके बुक का ही है, आपके बुक में भी दिया हुआ है। आप इसके एजम्पशंस डिस्कस कर लेते हैं। कहता है कि दो ही सेक्टर है मार्केट में, एक हाउस होल्ड सेक्टर है, एक बिजनेस सेक्टर है। पॉइंट नंबर 2 सेज ऑल द इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। जितना पैसा भी कोई भी इंडिविजुअल या हाउस होल्ड कमा रहा है वो सब पैसा खर्च कर दे रहा है कंजम्पशन में। देयर इज नो सेविंग, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ना ही कोई सेविंग है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, देयर इज नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड टैक्सेस। कह रहा है किसी भी तरह का गवर्नमेंट को देने वाला कोई भी एक्सपेंस नहीं है आपके पास, आपने सारे एक्सपेंस, देयर इज नो गवर्नमेंट, कोई सरकार ही नहीं है ना, कोई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, कोई टैक्स नहीं लग रहा है आपके ऊपर। फोर्थ पॉइंट कह रहा है देयर इज नो इंटरनेशनल ट्रेड, कह रहा है इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी नहीं है, ठीक। आपका कंट्री है, सिर्फ आप अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस करते हैं, अपने ही लोगों को बेचते हैं, ना गुड बाहर जाता है ना बाहर से अंदर आता है। फिफ्थ पॉइंट, हाउसहोल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिसीव रिवॉर्ड्स फॉर द सेम फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर। कह रहे हाउस होल्ड ही ओनर्स हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस यूनिट्स को देते हैं, बिजनेस हाउसेस को देते हैं, और ये बिजनेस सेक्टर बदले में उनको पैसे पे करता है, फैक्टर पेमेंट करता है। 6 नंबर, बिजनेस सेक्टर्स परचेज हायर द फैक्टर्स फ्रॉम द हाउस होल्ड। कहता है कि बिजनेस सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड से फैक्टर्स को खरीदता है, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को खरीदता है। यहाँ पे आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और ये सारा टॉपिक जो है वो कवर हुआ। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है। ये देखिए, ओके सर। देखो एक मिनट बेटा, आप लोग एक मिनट देख लो। देखो क्या है ना कि जैसे ही आपको ना इस आ गया है। हाँ ये पब्लिश हो गया होगा, अब इजीली खुल जाएगा, खोलो तो, हाँ खुल जा रहा है ना हो इजीली। गया है, रुको सर 1 मिनट सर, खोल के दिखिए हाँ रहा। हाँ बिल्कुल। नो सर, नहीं खुल रहा, नहीं। 1 मिनट रुको। एक तो आपको क्विज आया होगा है ना, ऑनलाइन स्टूडेंट असेसमेंट करके आ रहा है, यस सर, हाँ वो खुल रहा है लेकिन। वो तो खुल रहा है ना इजीली, ऑनलाइन स्टूडेंट असेसमेंट वो आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। ओके सर। और एक ये जो नेशनल लेकिन इनकम वेरियस कंसेप्ट, 1 मिनट रुको, तुम लोग पहले तो स्क्रीन देखो। अब ये स्क्रीन देखो, इसमें जैसे ही मान लो तुम लोग यहाँ क्लास वर्क में जाओगे, तो ये जो पहले बन के आ रहा है नेशनल इनकम, है ना, ये तो यस सर। इस नेशनल इनकम के ऊपर तुम क्लिक करोगे तो यहाँ तुमको ऑनलाइन क्विज मिल रहा है ना, क्विज ये इस पर क्लिक करोगे तो ऑनलाइन क्विज खुल जाएगा, जैसे खुल रहा है मेरे यस सर। कंप्यूटर, है ना। अब यस सर। ये नहीं खोलना है आपको, ये नीचे वाला नेशनल इनकम वेरियस कंसेप्ट है, इस पर क्लिक कर रहे हो तो ये नोट्स नहीं खुल रहा है। 1 मिनट सर, ट्राई करती हूँ फिर। करो, खुल रहा है, खुल रहा है मेरा ना, खुल गया है। ठीक है, हाँ। ओके। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे तुम लोग कमेंट ड्रॉप कर देना, हम उसको ठीक कर देंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, सी यू, बाय 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 सर। बाय।